शेरिल स्ट्रेड एक अमेरिकन राइटर हैं और पॉडकास्ट होस्ट भी हैं। उन्होंने अपने मेमोयर वाइल्ड में कहा है, आई न्यू इफ आई अलाउड फियर टू ओवरटेक मी, माई जर्नी वॉज डूम्ड. So I chose to tell myself a different story. I decided I was safe, I was strong, I was brave. Nothing could vanquish me. With that background, हेलो दोस्तों, मैं चेष्टा, आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में. Today we have with us Neha. Welcome, Neha. Thank you for joining us today. Hi, thank you for inviting me over. I admire Neha for the energy she brings to the room, for the multi talented, adventurous woman that she is, and for the depth of understanding and empathy she brings for others. जब भी मैं नेहा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बटरफ्लाइज या तितलियाँ याद आती हैं. क्यों? क्योंकि वो भिन्न भिन्न रंगों की बनी होती हैं और अलग अलग फूलों पर मंडराती रहती हैं, spreading joy to the world. Among other things, we do share our love for good coffee and chocolate ice cream. That's true. लेकिन इस फन लविंग इंसान के पीछे एक ऐसी इंडिविजुअल छुपी हैं जिन्होंने अपनी अडल्टहुड लाइफ में कंटिन्यूसली स्ट्रगल देखी. कमिंग फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, शी हैड टू ऑफन मिनिमाइज हरसेल्फ. कई बार उन्हें अपने आप को डीप्रायोरिटाइज करना पड़ा ताकि वो और लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकें. जिंदगी जिसमें सपनों की उड़ान भरनी होती है, जिसे पूरे तरीके से जीना होता है, उनके लिए वो एक सर्वाइवल बैटल बन गई. Neha today has kindly agreed with us to share these struggles with all of you. और हम सब अपने आप को privileged समझते हैं कि हम इस जर्नी का हिस्सा बनने जा रहे हैं. So let's talk to Neha. And first of all, I'm happy to be here, but this topic is genuinely difficult, like the podcast says, difficult conversations. And sitting here exposing my innermost fears, it's almost like a secret, right? Let's Yes. talk about your dysfunctionality, your family problems, and the struggles you've had as a child. So it feels like I'm letting my secret out. Yeah, also, I'd like to highlight to you is when we're talking about dysfunctional family, I did not struggle alone. In Pacific family voice, it. It just impacted me differently in a way that, I have ended up making sweet decisions in life, or I've felt directionless. Whatever I've done, I've felt that, it's not enough. I'm not enough. Or maybe I'm not good enough. ये feeling हमेशा रहती है. I think हम लोगों के साथ ये बहुत हो जाता है कि जब हम अडल्ट बन जाते हैं तो हम खुद ही जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि हमारे बचपन में क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा. शायद मेरे पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे होंगे, मेरे सिबलिंग्स भी सफ़र कर रहे होंगे, शायद उनके भी कुछ ट्रॉमास रहे होंगे, तो हम ओवर कॉम्पनसेट करने लग जाते हैं और हम अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं. हम कहते हैं ना, कीप गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर. So I think it's very important that we talk about these things, and I really salute you for your courage. क्योंकि फैमिली बहुत प्राइवेट होती है, फैमिली सबकी सेक्रेड होती है. हमारी फैमिलीज में कुछ भी चल रहा होता है तो हम उसको बचा के रखना चाहते हैं, रेपुटेशन अटैच होती है. सो आई रियली सल्यूट यू फॉर योर करेज. So much. And before I look, ये podcast के आने से पहले, I have been to therapists. I've been part of support groups, and I have come to this understanding that जो हम आज discuss करने वाले हैं, it's not a secret. Every family, it's not immediate family, relatives, neighbors. हम सबकी family से ये problem exist करती है. हम इसको shame से बहुत attach करते हैं. हम उसको dignity से attach करते हैं. है ना? और ये प्रॉब्लम ऐसी है, इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम. Everyone knows somebody who's struggling with this problem, but we just don't want to talk about it. बिल्कुल. So I'm happy that we have this space here. I really feel कि इस टॉपिक पे बात करने से ना बहुत बहुत लोगों को ये समझ में आएगा कि that it's not a secret and they are not alone. They are not struggling alone. Um, and that asking for help actually helps. बिल्कुल, बिल्कुल. ये तो मैं भी मानती हूँ कि आई थिंक दैट एज ऑल्सो एंड विद माय ओन एक्सपीरियंसेस कि मदद
माँगने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मदद माँगना ज़रूरी है। या या और मुझे याद आता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम तुमसे बात की थी, तो यू सेड अरे मैं शायद उसमें फिट नहीं हूँ। डू यू रिमेंबर दैट? या सो व्हाट वाज़ गोइंग थ्रू इन योर माइंड एट दैट टाइम कि मैं इसमें क्यों नहीं फिट हूँ? हाँ, तो मैं कन्वर्सेशन थी, आपने मुझे बोला था लेट्स टॉक अबाउट ग्रीफ। आई वाज़ लाइक व्हाट एम आई ग्रीविंग? एंड इट्स नॉट, मैं बोल रही थी मेरी फलानी फ्रेंड से बात कर लो, उससे बात कर लो जिन्होंने क्लोज कोई डेथ ऐसे इनकाउंटर किया हो कि उनको इम्पैक्ट किया हो। शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीफ इन दैट मोमेंट वाज ओनली लिमिटेड टू लूजिंग अ लव्ड वन। But then, during that conversation, and thank you for giving the right kind of prompts to me, मुझे realize हुआ that I do grieve not having a very safe childhood. You know, that being said, I'm not saying that I'm protecting my parents or anything. They gave me the best they could. So, as we are talking about alcoholism in the family and how, as an adult child of an alcoholic, I've lost bits of my childhood, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मेरे पास हमेशा एज़ अ किड, आई वुड फोकस ऑन दिस एज़ अ किड, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो स्कूल जाना है तो कभी कैब था, कभी पापा छोड़ने जाते थे और कभी पैसे भी मिलते थे, आज खुद चले जाओ। यू नो, देयर वाज़ ऑलवेज़ दैट एनवायरनमेंट कि सब कुछ अवेलेबल है। घर आते थे तो एक हैप्पी होम होता था, गरम ठंडा-ठंडा नींबू पानी मिलता था, खाना खाते थे, टीवी देखते थे। So happiness was always there in the house. It was that sudden moment when I was asked to be an adult. कि अब स्कूल खत्म हो गया, अब बड़े हो जाओ, कॉलेज तुम देख लो तुमको क्या करना है। अब तुमको पैसा भी कमाना है, अब तुमको घर भी चलाना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो इट वाज लाइक कि ये क्या हुआ? ये तो इस पे तो कोई प्रेप टॉक ही नहीं था, इस पे तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है। तो यू नो, दिस इज वेयर इट हिट मी, क्या करना है? तो आपको याद है कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब ये जो आप फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो, इमोशंस के बारे में बता रहे हो, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको ऐसा स्पेसिफिक याद है जब फर्स्ट टाइम ऐसा आपको? ऑलराइट, तो पहले जैसे बचपन में क्योंकि हर मेमोरी एक हैप्पी मेमोरी है, तो घर में हमेशा पार्टी का माहौल होता था। तो इट वाज़न्ट जस्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हमारे घर में हमेशा ही दारू चलती थी। छोटी-छोटी चीज़ों की सेलिब्रेशन 2-2 3-3 दिन तक चलती रहती थी। तो हमें लगता था इट्स अ पार्टी हाउस। रिलेटिव्स आ रहे हैं, सब पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, हम भी एन्जॉय कर रहे हैं। रात को लेट हो गए, कोई बात नहीं, सुबह स्कूल चले जाते थे। आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट, मुझे स्कूल में ना सुबह-सुबह मॉर्निंग असेंबली में आई वाज़ दैट गर्ल जो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, बट मुझे सब सुबह-सुबह चक्कर भी आते थे। जो वो वाली लड़कियाँ नहीं होती जो धूप में गिर जाती हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरी रात को कभी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो उस कारण मेरी हेल्थ पे उस चीज़ का इम्पैक्ट होता था और क्योंकि स्पोर्ट्स में सुबह-सुबह भागते थे, दौड़ते थे, तो व्हेन डॉक्टर सेड ऑल दीज़ थिंग्स ना, तभी ऐसा था कि चलो बिस्किट वो प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं ना, वो खा लो, चिकन सूप पी लो। बट द कोर इश्यू वाज़ नेवर डिस्कस्ड। और उस टाइम पे शायद बिकॉज़ टेलिंग अ चाइल्ड टू हैव इनफ स्लीप, शायद हमारा जो जनरल फिजिशियन थे उन्होंने भी ये बात को कभी हाइलाइट नहीं किया। So, नो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स एंड आल्सो जैसे मैंने बोला स्कूल जाने के लिए पैसे मिल जाते थे। तो पापा तो सुबह नहीं उठते थे, मगर उनकी जेब से ऐसे पैसे निकल आते थे, बेटा आज खुद जाओ। एंड यू नो ही वुड नेवर बी लाइक सॉरी मैं अभी उठ नहीं सकता या मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ही वुड नेवर से दीज़ डिफिकल्ट वर्ड्स। ही वुड ट्राई एंड पेप इट अप। नो सो आई एम श्योर कि पापा ने पॉकेट से पैसे निकाल के दे दी, तो इट्स लाइक एक्साइटिंग, आज तो मैं अपने आप से स्कूल जाने वाली हूँ। बट कभी ऐसा लगा कि ओह, पापा मुझे छोड़ के आते तो ज़्यादा अच्छा। सरप्राइजिंगली नेवर एज़ अ किड, क्योंकि पापा तो सुपर हीरो थे। मतलब एक ना ये एक चीज़ है ना, मैंने लेटली सीखा है कि बच्चों को रिदम और रूटीन पसंद होता है। मेरी लाइफ में बचपन से रिदम रूटीन था ही नहीं। इट वाज़ ऑलवेज़ फ्री फ्लोइंग, है ना? तो पापा शाम को घर आए हैं, इट शुड बी आइडियली कि 8 बजे बच्चे सो जाएँ और शायद बचपन में लाइट भी जाती थी ना, तो लाइट जाती थी तो ये नहीं होता था कि चलो लेट जाओ, हम पंखी झल देते हैं, आप सो जाइए। पापा बोलते थे इंडिया गेट चलते हैं।
तो और हम नहीं, पड़ोस के बच्चे भी उठा के गाड़ी में बिठा लिए, सारे बच्चे इंडिया गेट, हम वहाँ पे गीले हो रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और रात को 10-11 बजे वापस आ रहे हैं। एंड यू नो बैकग्राउंड में मदर्स क्या कर रही हैं, उन पे क्या बीत रहा है, वो तो मेमोरी में नहीं थी ना, बिकॉज एज अ किड तो विद having father around, and when he's sitting we would just look at him with eyes like अब क्या करेंगे, अब क्या फन होगा। तो यार आई थिंक जो पेरेंट इज मोर फन लविंग, जो थोड़े शायद कम स्ट्रिक्ट होते हैं या इजी होते हैं कह सकते हैं, तो एज अ चाइल्ड यू नो हम लोगों की आदत होती है उनको सेलिब्रेट करने की, उनको वर्शिप करने की, एंड वी ओवरलुक सो मेनी फॉल्स विद देम, एंड समटाइम्स एज अ रिजल्ट जो हमारे दूसरे पेरेंट होते हैं, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, वो विलन बन जाते हैं। हाँ ये तो है। तो बचपन में जब मम्मी मारती थी, हाँ मैं बचपन में बहुत पिटी हूँ। मैं भी। तो मैं बोलती थी ऐसे कि मुझे तो ये मम्मी नहीं चाहिए, मम्मी इतना मार रही है। और बचपन में जब पिट रहे होते थे ना, पता होता था कि इतनी भी कोई शरारत नहीं कर रही है जो इतनी मार पड़ रही है। वो अब समझ में आता है कि वो जो इतना सारा फ्रस्ट्रेशन फैमिली में जो चलता था, वो शायद उसका हमें पड़ता था। और तभी भी हम पापा के पास ही जाते थे, बचा लो भाई इनसे, आज तो मर्डर ही हो जाएगा अपना। तो पापा बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, दूसरी मम्मी ले आएंगे, ऐसे मजाक में बोलते थे, एंड वी ऑल यूज्ड टू लाफ अबाउट इट। बट नाउ एज एन एडल्ट आई सी दैट माय मदर हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट। Like, you know, even when there was alcohol parties or fights at home, mom would be like this shield कि बेटा अब तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है, एंड दिस इज नथिंग फॉर यू टू सी, और यू आर नॉट गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। बड़ी सटली बोलती थी अभी सोने का टाइम है क्योंकि सुबह उठना है। तो शी ऑल्सो, छोटी छोटी सी चीजें हैं कि मॉम ने हमेशा एक बैलेंस रखा। हम कभी भी ना वो वाले बच्चे नहीं थे जिनके लंच बॉक्स में मैगी मिले या बिस्किट्स या सैंडविचेस मिले। वी ऑलवेज हैड अ गुड ब्रेकफास्ट एट होम, a good lunch packed, and always a piece of fruit. You know, like she made sure that kids are well taken care of. And as a woman, now that I'm in my mid 30s, I see mid 30s में मेरी मॉम के शायद 3 बच्चे हो चुके थे। और जब मैं मेरी मॉम की सिस्टर्स से बात करती हूँ ना, तो वो बोलते थे कि हमें तो कभी नहीं लगता था कि तुम्हारी मॉम के 3 बच्चे होंगे, हमें तो लगा था शी इज अ करियर ओरिएंटेड वुमन, शी विल बी अ स्कूल टीचर और अ प्रिंसिपल, और यू नो आई सी यू नो द ट्रांजिशन शी हैज गॉन थ्रू और द स्ट्रगल शी हैज गॉन थ्रू, उनके बारे में तो कभी बात ही नहीं हुई। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, शी आल्सो शेयर्स दैट शी आल्सो हैड ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, बट द फैमिली वाज सच कि उनको पता ही नहीं चला लाइफ कहाँ निकल गई। सो आई कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हर कि सिर्फ मैंने ही स्ट्रगल किया या सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम्स हुए। वी ऑल वेंट थ्रू इट इन आवर ओन बिट्स एंड पीसेस। So at what age did you understand that, oh, your mother may have also suffered through it? And what age did you realize? Okay. I think embarrassingly so, quite recently. When my mom started, you know, saying कि मुझे बिना किसी बात के रोना आ जाता है, या उनके ना नैप्स काफी बढ़ गए। माय मॉम वुड, आई हैव ऑलवेज सीन हर टेक अ नैप फॉर 1 आवर और यू नो हाफ एन आवर, जो होता है ना कि चलो थोड़ी देर लेट जाते, कमर सीधी कर लेते दोपहर को। वो ब्रेक्स अब उनके 2 या 3 हो गए, और अब वो बोलती रहते हैं कि मुझे बहुत थकान होती है, मेरे बात बात पे रोने का मन करता है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। माय मॉम इज अ रियली गुड कुक। अब वो बोलती हैं कि मुझसे खाना नहीं बनता, या एंड वी कैन सी द, अब उनका आर्थराइटिस भी is coming in place. You know, when we are starting to talk about it, she's like, I'm sick and tired of this. I want my peace of mind. You know, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता रात को क्या हो रहा है, मुझे अपना सुबह उठना है, मुझे अपना योगा पे जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे घर के 50 काम है। If I won't do it, who will do it? So it's like she wants to be responsible, but now her body is catching up on her stresses. So when you realized it, अब वो एक ऐसे एज पे है कि वो शायद उनकी बॉडी उनका उतना साथ नहीं देती या मेंटल एनर्जी उतना साथ नहीं देती. What did you do about it? Uh, I started going to a support group. I told my mom to also start going to the support group. She was resistant पहले, मगर
the situation at home. So my family, I come from a multi-generational alcoholism at home. So if I say कि if it's my father's fault, that's not true. My grandfather and his father. So alcoholism जैसे बोलते हैं ना खून में है या genetics में है, तो I am from that family. शायद मेरे भी खून में, I don't know. तो नेहा, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली डिस्फंक्शनल है या मल्टी जनरेशनल अल्कोहलिज्म, तो हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है कि वो क्या होता है, तो थोड़ा आप समझा सकती हैं कि पहली बात तो डिस्फंक्शनल फैमिली का क्या मतलब होता है, दूसरा कि आपके लिए डिस्फंक्शनैलिटी का क्या मतलब। ये तो काफी बड़ा और गहरा सवाल हो गया है. So my understanding of a dysfunctional family is जहाँ पे core of the family parents की जो रोल डिफाइंड है ना, वो उसको अच्छे से फुलफिल नहीं करते. So if a father is supposed to be the provider, protector, or and mother is supposed to be the caregiver, तो वो रोल्स में कहीं एक कमी सी आ जाती है. तो मेरे घर का जो डिस्फंक्शनल कोर है वो अल्कोहलिज्म है. और बाकी फैमिलीज में, किसी और फैमिली में शायद डिप्रेशन या एंजाइटी या एनी बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हो सकता है ना. और कहीं ना कहीं मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड, हर फैमिली में एक कुछ डिग्री ऑफ डिसफंक्शनैलिटी होती है. Problem is when it impacts your personal well-being. So when it started to impact my anxiety, my career, my studies, my capacity to deal with change, or the feeling of constant overwhelmness, जैसे आपने मेंशन किया कि नेहा हमेशा खुश रहती है, बड़ी बटरफ्लाई रहती है. आई थिंक दैट्स माई कोपिंग मैकेनिज्म. मुझे खुश रहना और बेतुके जोक्स क्रैक करना मेरी नेचर बन चुकी है. एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम इट. एटलीस्ट आई फाइंड जॉय इन एवरी लिटिल थिंग. तो डिस्फंक्शनैलिटी का एक पार्ट ये भी है कि मैं बहुत अच्छे से झूठ बोल देती हूँ, और आई कैन manipulate situations and manipulate people to fit to my क्या बोले, my agenda. हाँ हाँ. तो मेरे पास नहीं, ये वोकैब बहुत रिसेंटली आया है, और थैंक्स टू थेरेपी, थैंक्स टू सपोर्ट ग्रुप, एंड थैंक्स टू having really good friends who help me understand that time to fix. आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज नेहा टू एक्सेप्ट कि हम लोग झूठ बोलते हैं, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते हैं, और हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट यू, राइट. एंड हम में से बहुत लोग तो एडमिट ही नहीं करना चाहते कि हम ये करते हैं. बहुत ज़रूरी है कि हम इस पॉडकास्ट में, ये डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन में एक ऑनेस्टी रखें. और जब हम डिसफंक्शनैलिटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ें कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती हैं. वो मेरा भी बन गया था. ये नहीं बोलूँगी कि ठीक हो गया है. आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस. दैट्स what I can say. Absolutely. I think we are all work in progress in Yeah. that way. तो नेहा, जैसे you mentioned कि मैं सर्वाइव कैसे रही, जब अडल्ट बनी, यंग अडल्ट बनी, फिर शायद मैंने कॉलेज गई होगी, इसके बाद जॉब्स की होंगी, मे बी शायद लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर मिले होंगे. तो उस टाइम नहीं रियलाइज होता कि हमारे शायद कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं. बट अब अगर रिफ्लेक्ट करें पीछे की देखिए, तो तुम्हें लगता है कि शायद झूठ बोलना इज वन सर्टनली वे, बट उसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि एक जो कांस्टेंट फीलिंग रही है ना, नो मैटर वेयर आई हैव बीन और वॉट एवर आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ, मेरे को ना हमेशा एक आई डोंट बिलोंग हियर वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आती है. आई चोज माई कॉलेज, आई चोज माई स्टडीज. जहां मुझे कोर्स में डिफिकल्टी लगी, आई डोंट बिलोंग हियर, दिस इज नॉट फॉर मी. सेम इन जॉब, जहां थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है, this is not for me. How can my boss talk to me like this? I think I was a very difficult employee. I'm one of those people जो अपने बॉस पे भी चिल्लाया है. And I've been gracious enough कि इतने अच्छे बॉसेस मिले हैं जिन्होंने
बहुत प्यार से इन बातों को समझा है. एंड आई वुड से most of my bosses have been female bosses, and they have been very kind to me. Somewhere I think as women who are older than me, they understand uh, that we go through. We working women have their own struggles. Wherever I went to college, I didn't like it. Wherever I worked, there was always a feeling I didn't like it. And even when I took a sabbatical to teach yoga and work on yoga, I started disliking that also. That's where I think कि क्योंकि घर पे इतना बचपन में challenges की कमी थी. I would say एक जो ट्रेनिंग होती है ना कि बेटा आपको कोई बताता है ये तो करना ही है, लाइफ में डिफिकल्टीज आती ही हैं, यू हैव टू स्ट्रगल थ्रू इट. वो वाली ट्रेनिंग नहीं थी. वो ट्रेनिंग बहुत लेट लाइफ में मिली है. तो वन ऑफ माई relative, I wouldn't name, I was discussing my problems with her and she said, बेटा लाइफ में ना जीवन एक संघर्ष है. दिस वाज द लाइन शी यूज्ड कि खुशियां ना बिट्स एंड पीसेस में मिलेंगी, उनको लेके ग्रैटिट्यूड रखो. जब तक तुम जिंदा हो तब तक स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट जस्ट हिट मी लाइक मुझे शायद स्ट्रगल करने से प्रॉब्लम है. Maybe I'm too used to living in that comfort, in that little zone. क्या आप ओवर सिंप्लीफाई करने हैं लाइफ को? क्या संघर्ष होना ही चाहिए उन चीजों का जिनके लिए संघर्ष नहीं बना है? आई थिंक जहाँ तक मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर हमारा जो एटीट्यूड है ना वो सब कुछ डिफाइन करता है. वो जब तक मेरा एटीट्यूड ये था ना कि अरे ये प्रॉब्लम भागो, तो तब तक प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हुए ना वो छोटे हुए. मगर जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना अब ये प्रॉब्लम तो है, अब क्या करना है, व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक फॉर सॉल्यूशंस, तब थोड़ा सा I started to scratch the surface. Yeah, the problem is not there, but here, that my attitude needs to change. I need to look at different strategies, or talk to people, ask for help, look for suggestions. जो पहले नहीं था, वो पहले तो ये था या तो यहाँ से भागो या ये मेरे लिए नहीं है. तो जब से ये समझना हमने शुरू किया कि लाइफ में तो स्ट्रगल रहने ही वाली है और मेरा एटीट्यूड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइफ कैसा रहेगा. हाँ. लाइफ इजी हो गई या डिफिकल्ट हो गई? लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है. तो जैसे हम ना आज का हमने टॉपिक डिसाइड किया था, हम ग्रीफ पे बात करेंगे. तो जैसे पहले मैं बहुत रिजेंटफुल थी अपने फैमिली को लेके कि आपकी वजह से मैं ऐसी हूँ, आपने मुझे ये नहीं सिखाया, बाकी के पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, और बिकॉज ऐसा ना तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी लाइफ. बट जब ये चमका ना कि यार ये तो ऐसे ही है, और जब इन्होंने दे हैड मी एज अ चाइल्ड, इन्होंने ये तो सोचे थे इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेंगे. उन्होंने तो मुझे बेस्ट दिया, और शायद जो उनको नहीं मिला वो मुझे दिया, है ना. इट wasn't enough for me, और I had those feelings because my perspective was also coming from somewhere else, है ना. क्योंकि उसके पापा ऐसे हैं या उसकी मम्मी ऐसी है, मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों नहीं है. अगर जब मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया ना, ये ऐसे ही हैं और इनके अपने ट्रबल्स हैं, और माय फादर इज लाइक दिस बिकॉज उनके फादर भी तो ऐसे थे, और उनके तो मतलब यहाँ तो खानदानी प्रॉब्लम एक चलता ही चला आ रहा है. विद दैट एक्सेप्टेंस ना मेरा जो एक एंगर और रिजेंटमेंट थोड़ा सा डाउज हो गया. एंड आई हैव ऑल्सो लर्न टू डिटैच विथ लव. They are my parents. I love them, but they are not responsible for all my problems. There's an expiration date too when I can blame my parents for all the struggles or all the problems I have in my life. अब तो मैं full blown adult हूँ ना. I am a married woman. मैं अब अपने पेरेंट्स को अपने फेलियर्स के लिए कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? तो उसका मुझे लगता है मैंने उस डेडलाइन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया. वो हो गया जितना वो मेरे लिए कर सकते तो मैंने अपने से ज्यादा ही किया, और अपने से बहुत बेहतर देने की ही कोशिश की. तो आई रिस्पेक्ट देयर स्ट्रगल्स एंड आई रिस्पेक्ट all that they have given me, but now I have stopped demanding what they cannot give me, and that has given me a lot of peace. I think that's a lot of strength here.
an individual saying that जब आप बड़े हो जाते हो और एडल्ट हो जाते हो तो शायद कहीं कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती। हाँ। आप कंटिन्यूअसली सिर्फ माँ बाप को ब्लेम करके छुट्टी नहीं पा सकते। जो हम सबका एटीट्यूड होता है ना, किसी हाँ। और पे ब्लेम डाल दो और फिर बस मेरी कोई प्रॉब्लम मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसफंक्शन फैमिली में ये भी होता है ना कि पेरेंट्स का आपके साथ एक ऐसा अटैचमेंट होता है कि वो भी आप पे हुक डाल के रखते हैं जितना आप उन पे हुक डाल के रखते हो ना। तो वो अनहुकिंग इज वेरी पेनफुल। और आपने सोचा हाँ ठीक है चलो आई एम ट्राइंग एंड आई एम गोना मेक माय लाइफ बेटर, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा डिटैच करो, बट उन्होंने तो ये सब नहीं किया ना। Absolutely. उनके लिए तो हम वही बच्चे हैं ना जिनको I had a friend, I still have a friend, उसके साथ तो मेरे से बात कर रहे थे थेरेपी ये वो चाइल्डहुड ड्रामा ये वो। तो ही इज द सॉर्ट ऑफ हार्डी है वो बोलता है यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, जिनको थेरेपी के बारे में नहीं पता होता ना वो भी सरवाइव कर ही जाते हैं। पर वही बात है ना, हम सरवाइव ही कर जाते हैं और हमारे ना सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाते हैं। सम ऑफ अस बिकम अब्यूसिव, नॉट फिजिकली और वर्बली, लाइक यू नो हम बिहेवियर हाँ बिहेवियर अब्यूज। हमारे शील्ड्स बन जाते हैं। और कभी कभी ना जब हम इस बारे में सोचते हैं कि वो फलाना मेरा दोस्त क्यों नहीं है या उसके साथ मेरा रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है या मेरे वर्क में मुझे ऐसा स्ट्रगल क्यों आया, मोस्ट ऑफ द टाइम ना प्रॉब्लम 90% इमोशनली होती है। और हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें ना तो कालिक अपने ऊपर ही लगी होती है, मगर हम दूसरे के ऊपर देखते हैं। तो नेहा, जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट कि जब प्रॉब्लम आती थी तो मैं छोड़ देती थी उसको, है ना? So did you lose people? Did you lose jobs? Did you lose opportunities? ओ यस, मैंने कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत बार खोई हैं। और मुझे ना रिग्रेट भी बहुत देर में हुआ क्योंकि तब तो ईगो ट्रिगर था ना, नहीं चाहिए मुझे। बट रियलाइजेशन लेट आया एंड आई वुडंट से दैट आई रिग्रेट इट। आई थिंक रिग्रेट करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बट ये मेरी एक लर्निंग है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम शेयरिंग कि अब मैं प्रॉब्लम्स के साथ ना आई गो थ्रू देम। अब मैं डिफिकल्ट सिचुएशंस और कॉन्वर्सेशंस और पीपल से भागती नहीं, अब मैं बात करती हूँ और बात करने से बहुत बात बन जाती है। So नेहा, अपॉर्चुनिटीज छूट जाती हैं, जॉब छूट जाती हैं, तो वो तो अब वापस नहीं आ सकती। बट कभी रिलेशनशिप्स छूटे हैं, दोस्त छूटे हैं? हाँ, दैट बिट हर्ट्स अ लॉट। और वो लोगों को कभी कुछ लोग देखो जिन लोगों से ऐसी कुछ लड़ाई वड़ाई हुई, कुछ लोग वापस आ भी गए। आई गेस आई डू रिग्रेट लूजिंग सम पीपल इन माय लाइफ। तो कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें रियलाइज हुआ कि शायद मेरी गलती थी, and did you go back to those people and probably apologized or something of that sort? देखो मेरी डिसफंक्शनैलिटी तो ये है कि मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, तो मुझे लगता है मेरी गलती तो है ही नहीं। अभी रिफ्लेक्शन में अगर मैं रिफ्लेक्ट करने लगूँ ऑन एवरी लॉस्ट रिलेशनशिप, यस आई थिंक जो रिलेटिव्स में प्रॉब्लम्स हैं हाँ वो तो अपने ही घर से स्टेम हुई है। एंड बट दोस्तों के साथ भी शायद वो जो एक एंग्शियस एनर्जी जो मैं कैरी करती हूँ और उस एंग्शियस एनर्जी में एक बॉसी इगोइस्टिक वुमन भी जो निकल के आ जाती है, that could be the reason and this is my reflection on the situation and मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे I want those people to come back in my life। Yeah, no, no. मेरा I am temperamental। So do you feel that still there is more work to do? Yes, I think yeah a lot। So Neha, you're married, right? Yeah। And जितना मैं तुम्हारे और मेरे के बारे में जानती हूँ, we have been friends as well, right? So how did this entire trauma that occurred in your life due to dysfunctionality in your family, how did it impact your relationship? बेचारा मेरे पति ने बहुत struggle किया। He's a sweet guy, he is a gentle soul, he has his own set of struggles. I will not focus on his struggles in this conversation. I understand. But he has been very supportive
of my life choices, my career choices. हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत भयानक और भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं हमारी। एंड but he's been supportive, and somewhere I think मेरा personality की वजह से because he's a very artistic person, a very soft person, उसको damage भी हुआ है to a point I think at times he wanted to have a conversation about some issue or something, और मैं अपना ही कुछ स्ट्रगल से इतना ज्यादा जूझ रही हूँ कि मैं उसको पर्सनली ले लेती हूँ और फिर मैं उसको पर्सनली अटैक कर देती हूँ। वरना ये चीजें जो हो गई है ना, आई होप इट्स नॉट irreparable damage. I still hope there is scope of improvement in both of us, and that we work things out. तो नहीं कभी ऐसा होता है कि जो आपने अपनी फैमिली में देखा कि ये प्रॉब्लम्स थी, तो आप कोशिश करती हैं कि वो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में ना हो? मुझे ये ना साइट बहुत ये साइट आना इन इटसेल्फ इज अ मोमेंट ऑफ एपिफनी जो मुझे काफी लेट आया इन द रिलेशनशिप, क्योंकि आई हैव ऑलवेज सीन माय फादर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लड़कियों की लाइफ में। हम इसको माने ना माने, हाईलाइट करें ना करें, बट यस आई मेरे फादर ना क्या बोले, कभी मैंने उनको रूटीन में नहीं देखा भैया, कभी मैंने उनको एवरीडे अफेयर्स में लीड लेते हुए नहीं देखा। He's been very chilled out, fun guy. My father is a party guy. I love him. So, but being around Meek, my husband, who's a responsible, regular guy, मुझे लगता है ऐसे क्यों कर रहा है? बोरिंग हो गया। हाँ, एक्सेंट्रिसिटी लेवल बहुत लो है ना? अगर शायद वो मुझसे दारू पी के लड़ाई करता तो मुझे पता है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। बट इफ ही जस्ट वांट्स टू सिट ऑन द काउच एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद मी एट होम इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू because I don't know how to do it. So is it all right to say that you're used to chaos? Yes, chaos and survival comes naturally to him. But having a discipline of routine or having a normal day where I wake up, I work out, I go to work, I come back home, I have dinner and I go for a walk. Like, अरे आज तो कुछ किया ही नहीं, आज कुछ मजा नहीं आया। Routine becomes boring for you, basically. But अभी समझ में आ रहा है कि the key is consistency. Or the consistency is the key, however you say it. Yeah, that's true. समझ में आ रहा है कि एक नॉर्मल रिदम को मेंटेन करना is actually difficult. To fall into chaos is pattern. Yeah. Unhealthy pattern. I think ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है हम लोगों के लिए, और ये मैंने अपने काफ़ी दोस्तों में भी देखा है दैट इनको chaos की इतनी आदत हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट की इतनी आदत हो जाती है, क्योंकि वही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा। तो वो नहीं होता तो उनको लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी कुछ बोरिंग सा ही, तो एक्साइटिंग ही नहीं है। And in these situations, I have seen that I instigate people. अरे तू जा, अरे तुझे पता ही नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान है कि एक सिचुएशन में ना रावण की तरह अपने 10 सर निकाल के ऐसे सोच लो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, ये होगा तो ये करूंगी, like my mind functions like that. But this simple human being who is such a gentle soul, he wants to have a conversation with me, like sitting on a couch और शाम को चाय के साथ बात कर लेते हैं। Absolutely. मुझसे होता ही नहीं, अब मुझसे होता ही नहीं था। I'm practicing that. Therapy and support group has helped me and told me, I've understood कि ये normal है, ये लोग करते हैं, लोग बैठ के बात करते हैं, husband wife बैठ के बात करते हैं, and it's okay. तो I'm learning. And I've noticed कि कभी-कभी जब बिल्कुल अच्छा मूड होता है, and he shares these things with me, I'll give him my understanding opinion, or like a counter argument kind of a thing. So बोले हाँ मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, थैंक्स यार। बट अगर मेरा मूड नहीं है और वो मुझसे बात करो, ऐसा भी नहीं है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा मन नहीं है बात करने का। If he's coming, I'm showing up. If he wants to talk, I'm participating. But I'm getting irritated. So I'm not telling him that I'm getting irritated. Now I've started telling him, मेरा भी बात करने का मन नहीं है।
ही वांट्स, वो खुद भी, उसको भी तो खलबली मच रही है, कुछ बात करनी है उसको, मैं बोलूँगी जस्ट लीव मी अलोन राइट नाउ। इससे क्या होगा, बड़ा आर्गुमेंट बच जाएगा। तो छोटा आर्गुमेंट की हमेशा ही तेरा मूड खराब होता है, उसमें मैं चुप हो जाती हूँ, ठीक है, हाँ मेरा मूड खराब है, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट लेट इट बी, आई डोंट वांट टू टॉक। So I think this is I think this is the beauty of a marital relationship, कि हम ना ये डिफिकल्ट चीजों में ना अपनी बाउंड्रीज बार बार रीडिफाइन करते हैं। और बीच में हमारे बहुत इश्यूज भी हुए, वी ऑलमोस्ट थॉट दैट वी विल पार्ट वेज, एंड उसमें भी एंड कॉन्वर्सेशन उसने ये बोला कि नहीं जो भी था, सो हैप्पी that you were such a beautiful part of my life. You like you refer to me as a butterfly. He always says कि you're like this bird who's come and build a nest on a person like me who's like a tree, very stable and growing, and you know like he's very बहुत स्टेबल सा है। तो कभी कभी उसकी स्टेबिलिटी को स्टेट ऑफ इनर्शिया भी डिक्लेयर कर देती हूँ। I don't think that I'm the person who wants to live in chaos, but because I've lived in chaos as a child, my headspace becomes full. Um, I have said this to so many people so many times that I'm feeling emotionally overwhelmed, and I've lately learned to verbalize this. पहले तो बस ये लगता था बात मत करो, दूर हो जाओ, you know. Being raised in a dysfunctional family, there are few years in my life जो बिल्कुल blur है। मुझे याद ही नहीं है कि मैं उस पीरियड में क्या करी थी या क्या हुआ। एंड at workplace also when I see this happening, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, कुछ कुछ है, suddenly there'll be like this brain fog, it just comes, और तब मुझे सुनाई भी देना बंद हो जाता है। So it's like disconnecting from the reality. It's like the brain or the body takes over, or maybe it's like a shutdown mechanism or a survival mechanism. But I would want कि ये ना हो, and that I'm able to go through a difficult phase and grow out of it, then continue to shut down in difficult situations. But and ये शायद ऑडियंस के लिए समझना शायद इजी हो जाए कि मान लीजिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, राइट? तो ऑब्वियसली योर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट लेट मी जस्ट शट इट आउट। Yeah. But I'm sure there is a conscious awareness also कि let me try. Yeah, let me try. But because you have been doing something so long and you're become, maybe we can call it addicted to that action, you know, that's why it comes easier, or as you say, habitual. I'll tell you what, there's a flip side to it. One is the shutdown mechanism, when the mind and body takes over. The other thing that happens is excessive control or micromanaging other people's lives. You know, That's a good insight. oh, वो एक जो है ना कि तुम खाना भी क्या खाओगे वो मैं ही बताऊंगी, और तुम या तो कंट्रोल है या छोड़ देते हैं। हाँ, finding that balance is a very difficult path. You know, तो हमेशा aware रहना. I slip, I still do, but I know कि अगर मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी लाइफ कंट्रोल करे, the other person also doesn't like it. वो awareness आती भी और चली भी जाती है। Now as a human being, you know, it's very easy to find compassion for yourself, you know. तो अब जब आप देखती हैं कि there is another person who maybe is going through something similar, आप भी के जैसा कुछ behavioral pattern है या situation है, तो आपको क्या महसूस होता है किसी और को उसी situation में देखते हुए? कहना सही है कि नहीं, बट मुझे बहुत दया आती है when I see a young person drunk. It breaks my heart. But when I see women who are from an alcoholic family, married in an alcoholic family, you know, that just shatters me. That there is no respect for them. That उनके patterns कितने ही strong हैं कि जो उन्होंने देखा उन्होंने वही इसको आगे उनको वही मिला, because उनका energy या उनका state of mind ने वही reflect किया. That really breaks my heart. It's alcoholism is a पता है, शराबी
वो प्रॉब्लम नहीं है शराब में, और जो पी रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड में प्रॉब्लम है। हम अल्कोहल को बोलने की अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर यू, हर कोई अल्कोहलिक नहीं बनता है, बट कुछ लोग जिनको अल्कोहल ऐसे इम्पैक्ट करता है कि उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाए, वो अलग पर्सनालिटी बन जाए, है ना, जैसे सुपर हीरो बन जाते हैं, वो प्रॉब्लम है जब अल्कोहल आपका स्टेट ऑफ माइंड ही ऑल्टर कर दे। तो उस चीज के बारे में बात करना जरूरी है। नॉट एवरीवन हु ड्रिंक्स इज एन अल्कोहलिक। I also want to understand, that there must be day-to-day moments जब आपको लगता होगा कि कुछ ट्रिगर आ गया, मैं अचानक से ओवरवेल्म हो गई हूँ। ट्रिगर कुछ भी हो जाता है, कभी एक डिस्ट्रेस्ड कॉल आ जाएगी कहीं से, या मम्मा ने कुछ कह दिया, या पापा ने कुछ कह दिया, या हस्बैंड से कोई तनातनी हो गई, फ्रेंड से कोई झगड़ा हो गया, या जॉब में कुछ हो गया। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, और कई बारी मेंटल हेल्थ इश्यूज में तो ये भी होता है कि ट्रिगर कुछ होता ही नहीं और अचानक यू आर लाइक ओवरवेल्म्ड, द ट्रिगर कम्स फ्रॉम इंटरनल imbalance. So what do you do? I would like to, थोड़ा लंबा आंसर हो गया ये, Sure. before therapy and after therapy वाला। So before therapy तो ये था कि I was always available. I could never put my phone on silent mode. चाहे मैं घर के पास हूँ, मैं सेम सिटी या सेम कंट्री में भी हूँ कि नहीं, मेरा फ़ोन हमेशा लाउड और हमेशा व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहता था कि पता नहीं क्या हो जाए, आई हैव टू बी अवेलेबल। एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब ऐसी डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं, आई थी इन द पास्ट, एंड आई वुड जस्ट लीव व्हाटएवर आई वाज डूइंग टू रश होम, एंड it has impacted my work, my friends, my social gathering, my social life, and my personal life, definitely with my husband. But in therapy and in support group, I learned to surrender that I did not cause these problems. I cannot control these problems, and I don't have a cure for them. I didn't cause it, I can't control it, and I can't cure it. नॉट एवरी बैड सिचुएशन इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट लर्निंग थी, क्योंकि फर्स्ट थॉट तो यही आता है कि द वर्स्ट इज गोइंग टू हैपन, एंड वहां से स्टेप बैक करना, लाइक आफ्टर बीइंग इन थेरेपी, कॉल तो अभी भी आता है, दिस इज हैपनिंग, हमसे नहीं हो रहा है। तो माय आंसर नाउ इज, इफ इट इज लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, आप एम्बुलेंस को कॉल करना, मैं हॉस्पिटल आ जाऊंगी। Now I have a small question for you. Isn't that an extreme reaction which is totally opposite, that कुछ हो जाए तो एम्बुलेंस को बुलाना और मुझे बाद में कॉल करना? Do you think it's an extremely opposite reaction to how you're coping? जो डिसफंक्शनैलिटी है ना, ऐसे नहीं होता कि एवरी सिचुएशन इज नॉट क्राइसिस सिचुएशन, कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम हो तो हॉस्पिटल फोन करना, आई एम श्योर कोई हॉस्पिटल तभी फोन करेगा जब मरने जीने की प्रॉब्लम सच में है। अगर फैमिली और अपने जिन पे आप कोडिपेंडेंट हो, उनको ना आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी फोन करते हो और वो इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो दिस इज व्हाट आई मेंट, कि इट्स नॉट दैट आई एम बिकमिंग इनसेंसिटिव, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हेल्दी बाउंड्रीज, कि अगर उधर मेरी अपनी, आई एम इन अ डाइट, आई हैव माय लाइफ, कैन यू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अ working week, I may have work tomorrow, I may have something important tomorrow, but नहीं, अपना प्रॉब्लम का इतना बड़ा इशू क्रिएट करना जो कितना बड़ा हैवी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कमिंग फ्रॉम अ डिस्फंक्शनल फैमिली, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ना आती भी है तो हम दिमाग में उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये एबिलिटी नहीं थी कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें क्या क्रिटिकल है, क्या इम्पोर्टेंट है, और क्या बस एक जेनरिक रूटीन है, राइट? But I think with therapy, you're saying that you have been able to begin differentiating that, right? ये वर्ड्स सुने हैं ना कि इन्वेस्टमेंट होती है, फैमिली के साथ कोडिपेंडेंसी होती है, तो पहले तो मुझे गूगल ही करना पड़ गया इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है भैया, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज कोडिपेंडेंसी। जब इसके बारे में पढ़ा, थेरेपिस्ट से बात की और अपने सपोर्ट ग्रुप में इसके बारे में डिस्कस किया, और हमारे हिंदुस्तान में ना थोड़ा ज्यादा है कि बच्चों को आप चाहते हो बड़े हो जाएं, सपोर्ट
फैमिली को सपोर्ट करे, मगर ना आप उनसे अलग नहीं हो पाते हो, मतलब एक उनको एज एन इंडिविजुअल एडल्ट आप उनको नहीं देख सकते हो. यू ऑलवेज वांट देम विथ यू एज अ सपोर्ट सिस्टम. इट्स लाइक ड्यूटी करें लेकिन फ्रीडम ना मांगे आपसे, हाँ, है ना? कि हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा लें, लेकिन एक अडल्ट इंडिविजुअल जिसको फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, ना करने का हक होना चाहिए, वो ना हो, क्योंकि आप बच्चे तो हैं ही ना हमारे। एग्जैक्टली. मगर मतलब मेरे घर में इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, तुमको पार्टी तो जाने देते हैं, तुम तो कितनी पार्टी करते हो, तुम तो रात को लेट भी आती हो, तुमको कभी रोका है हमने? कितनी इंडिपेंडेंस चाहिए तुमको, है ना? सेइंग कि यार एक मेंटल स्पेस चाहिए. तो शेयर अ पर्सनल एग्जांपल. मैं भी अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती हूँ ना, तो इफ आई एम सिटिंग इन माय रूम, आई एम डूइंग माय वर्क और समथिंग, तो कभी मम्मी फिर पापा को लोग आकर चेक क्या कर रही है? अरे यार काम कर रही हूँ यार. तो मेरे मेरे साथ तो ना उनके यहाँ रह के ना वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो सकता. तो उनको लगता है अगर ये घर पे है ना, तो शी शुड बी सिटिंग विद अस एंड टॉकिंग विद अस. तो एंड आई नो दे ट्राई, बट आई थिंक उनका भी अपना डिजीज या उनका डिसफंक्शनैलिटी भी इतनी स्ट्रांग है ना, कि उनको भी चाहिए कि साथ कोई होना चाहिए हमेशा. तो इट हैज आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. It is still a work in progress to learn and to accept that I can't always help my parents. That they are not my responsibility. Like everything that happens in their life is not my 100% responsibility. True. इतना मुश्किल है ये. मतलब कभी कभी जैसे अगर मॉम कभी फोन दिल करके खड़ा करना पड़ता है ना कि क्या हाँ. से नो नाउ। Yeah, like when she calls and says कि I'm in pain या वो कुछ arthritis flare up हो गया है, and I have to say कि हाँ मम्मा आप फिजियोथेरेपी के लिए चले जाओ, या अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि आई एम सच अ बैड डॉटर, कि maybe she just wants to sit with me and she wants me to massage her joints. So I think that also comes from the fact that जो पेरेंट्स रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल गई शायद कमाने में, हमें बड़ा करने में, और उन्होंने भी शायद अपने जो शौक थे वो कभी पूरे नहीं किए, और अब शायद उन्हें वो समय मिला है जब वो हम लोगों के साथ बिताना चाहते हैं, इन अ मीनिंगफुल वे. yeah, दैट बेटी घर आई है तो हमारे साथ बैठे, हमें अपनी बातें बताए, अब वो दोस्त बनना चाहते हैं. I had a very similar conversation with my mother last year. That when I needed you as a friend, you were not there. And it's very difficult for me. I understand that you want me to be a friend. आप दोस्त बनना चाहती हैं मेरी, लेकिन अब मैं नहीं बन पाऊँ. क्योंकि मेरी वो जो दोस्त बनने की जर्नी थी आपके साथ, वो पीछे रह गई. wow. तो वो आई हैड अ वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन विद हर कि अभी ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अगर 70 इयर्स की हो गई हैं तो मैं भी 40 इयर्स की हो गई हूँ. मेरी भी जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया है. मैंने भी अपने बहुत सारे डिफिकल्ट पड़ाव खुद देख लिए हैं आपके बिना. तो आप दोस्त बनना बहुत मुश्किल हो, पर मैं कोशिश करती हूँ अब, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि उनकी भी नीड्स हैं, वो भी ओल्ड हो रही हैं, और शायद अब वो ये समझती हैं कि बच्चे के साथ दोस्त बनना चाहिए था. तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हर. आई थिंक ब्लेटेंटली ये भी कहना कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या उनकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है भी शायद सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ज़िंदगी जी, उनके लिए वो चेंज करनी बहुत मुश्किल है. उनके रोल मॉडल्स अलग रहे, उनके आइडियाज़ अलग रहे, हमारे रोल मॉडल अलग हो गए, हमारी टाइप ऑफ लाइफ अलग हो गई जैसे हम उसको जीते हैं. Right. आज हम जेंडर की बात कर सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं, हम बैठ के ये बात कर सकते हैं कि हमारी डिसफंक्शनल फैमिली है. हाँ. I cannot imagine, my mother talking like that. Yeah, that's true. I think So those parallels have changed. you've raised a valid point, and I completely agree with you. कि शायद हमें जब सपोर्ट की ज़रूरत थी तब शायद हमारे पेरेंट्स हमारे साथ उस तरीके से अवेलेबल नहीं थे. They could only do what they could. Their own limited means and ways. But I would say that as a child, it's not my responsibility. So absolutely, I totally agree with you, and I think it's a very personal take as well. Like, because now with age, my entire personality is moving towards empathy, having compassion towards other people. And with my own experiences, I've realized that all of us are fighting some battle or the other,
Like my mother must have fought her own battles. She lost her father, she lost a brother, she had very difficult relationship with her sister. So she must be going through her own turmoil at that time. Yeah. So and she's given me the strength of character that I have today comes from her. So it's not like he was हमेशा destructive ही रहा है relationship. The person who I am, the kind of important choices I can make today. It's all thanks to her. And beautiful, and she's given me the strength of character that I can fight against the world. I can be whoever I want. Yeah. But let's come back to the discussion. And I think very rarely in India we find people who take therapy and owns it up and say that it is helpful. In India में therapy का उतना वैल्यू नहीं. तो थोड़ा आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आप कैसे थेरेपी तक पहुंचे, किस प्रकार की आप थेरेपी लेते हो, एंड हाउ डज इट हेल्प यू? Okay. I went for therapy when I remember that phase, सब कुछ ही मुश्किल था. मतलब बेड से उठना भी मुश्किल था, टू हैव 3 मील्स भी मुश्किल था. सोने जा रहे तो नींद नहीं आ रही, उठ रहे तो उठ नहीं पा रहे. मतलब एवरीडे सिस्टम बिकेम डिफिकल्ट और रेगुलर कॉन्वर्सेशन में चीखना चिल्लाना और रोना धोना बहुत हो गया. तो मुझे लगा है आई एम लूजिंग इट. तो दैट्स व्हेन थेरेपी हैपेंड एंड वीकली सेशंस होते थे, बात होती थी एंड द थेरेपिस्ट सजेस्टेड मी फॉर support group. The support group has actually been, I would like to keep that anonymous. Sure. The support group has been very helpful. Why? Because मेरे तरीके की मेरी प्रॉब्लम्स वाले लोग जब एक साथ बैठे ना, तो उसमें लगा यार आई एम नॉट अलोन. There are other people who are struggling with the same kind of problem, and if they can survive, I can survive too. And उनकी लर्निंग और उनके एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे लगा हाँ मे बी आई कैन ट्राई सम ऑफ दीज थिंग्स इन माई लाइफ एज वेल. That's been my journey, and I would say that therapy has made me a very spiritual person. My day begins with gratitude. Of course, there are days when I forget. That's all right, I guess. Well, I make sure that when I wake up, I thank my God for this day, for this life, for their grace in my life. And then I also begin, after gratitude comes surrender, that whatever I do today should lead me closer to you. My actions should bring me closer to you. So help me and guide me. I'm a foolish child. Okay. जब हम इतना सफ़र करते हैं ना और हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ही मेरी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, मुझे ही सोल्यूशन निकालना है, मैं ही कर सकती हूँ, मुझे सर्वाइवल मोड में रहना है. और उसमें आप एकदम ऐसे जब उस लेवल तक जाते हो ना, एकदम हताश हो जाते हो. तब ये आपको हिट करता है कि भाई आई एम नॉट द मोस्ट पावरफुल. Of course. देयर इज एन एनर्जी विच इज द मोस्ट पावरफुल. Right. और उनको बोल दो भाई गाइडेंस दे दो, मेरी प्रॉब्लम्स ले लो, मुझे सॉल्यूशंस दे दो, मुझे स्ट्रेंथ दे दो. आप नहीं दोगे तो कौन देगा? जब आप सरेंडर में जीते हो ना, कि इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा. आपको मुझे ना लोग पूछते हैं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आप कैसे होते? अरे पता नहीं, तो मैं ही नहीं होती ना. हाँ, exactly. अब काल में यहाँ ही नहीं होती, मैं तो कुछ और ही कर रही होती. Would you like to say something to our audience, especially younger people? My request, not a message to younger people, would be ask for help. आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका एक सोल्यूशन है. और कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है that it should weigh on your head, or you should carry it on your shoulders for the rest of your life. Shame is not a good feeling. Guilt is your enemy. तो ये shame, guilt और burden को ना अपनी लाइफ से आप हटाने की कांस्टेंट कोशिश करिए, बात कीजिए. और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से बात करें, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं. यू विल फाइंड वेरी अमेजिंग रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स अराउंड यू. स्पीक टू देम. और अगर आप सोल्यूशन ढूंढेंगे, हेल्प ढूंढेंगे, तो हेल्प आपको मिलेगी. एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल नो मैटर वॉट.
उससे जो अपना ना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं ये क्रिप करती रहूँगी ना कि बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ वेरी अल्कोहलिक डिसफंक्शनल फैमिली, तो मेरी लाइफ में सब बुरा ही है। नो, नो, आई लव माय पेरेंट्स, आई लव माय फैमिली, they have given me a good life, and it is because of their love and blessing that I'm here. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप बस पर्सपेक्टिव चेंज करें। क्या बोलते हैं वो, नज़रिया बदलिए, नज़ारा बदल जाता है टाइप। दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, या एक हम बोलते हैं सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड होता है कि हम बेचारे हैं, हमारे साथ ही ये होता है। ट्रू भी है, ऐसा नहीं है कि ट्रू नहीं है, बट सिर्फ उस में बैठने से तो सोल्यूशन नहीं नहीं निकलता। नहीं निकलेगा। आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। या एंड ऑल्सो अगर हम, एक तो होता है सेल्फ विक्टिमाइज, एक तो ये होता है, एक होता है कि दूसरों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, उसने ऐसा किया उस समय तो मैं ऐसा नहीं कर पाया। ठीक है, मे बी, मगर इसमें आप अपना रिफ्लेक्शन ढूंढिए, व्हाट कैन यू चेंज इन यू टू मेक इट बेटर। Yeah, that's all I have to say. Thank you so much, Cheshta. This was beautiful. I'm so happy that you have given me the platform to share my experiences. And like I shared, I want to talk more about alcoholism and alcohol-related dysfunctionalities that exist in families, and because it's not a secret. We are all struggling from it, and I think there are solutions. Solutions are available. There are professionals who can help you deal with these problems. So ask for help, look for solutions, and you can find them. Thank you. Thank you so much, Neha, for giving us time today and such a beautiful closure message for our audience. Thank you for watching us today. अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो आप हमसे जुड़े रहें डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस पर।